اب بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ تونسا شریف میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے لوگ بے یار و مددگار ہیں۔ انتظامیہ ریلیف کیمپ لگانے اور امدادی کاموں کی دعوے دار۔ انتظامیہ نے سیلابی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تونسا شریف میں سیلاب کی تباہ کاریاں، لوگ بے یار مددگار، انتظامیہ ریلیف لگانے اور امدادی کاموں کی دعوے دار۔ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے سیلابی ریلا نافذ کرنے کے لیے تونسا شریف کے سیلابی علاقوں میں متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ سیلاب نے منگروٹھا، سوکڑ، کاچھل، چوکی والا، احمدانی، مندرانی و ہوا میں زیادہ تباہی مچائی۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا۔ سڑک پر امداد اگر تقسیم کی جا رہی ہے تو وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ انہیں نہ تو ٹینٹ دیے گئے ہیں اور نہ ہی راشن اور نہ ہی خوراک۔ انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ کوئی مدد کوئی نہیں ہے سارے کو آئین تر رات بچی نے گھر پر سارا کوئی حال کوئی نہیں، سارا گھر دیکھو سارا تباہ تھی گئے، سامان لڑ گئے، دانا لڑ گئے، جو چیزیں ساری لڑ گئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا کہنا تھا کہ ایک اور سیلابی ریلے کے خدشے کے پر سیلابی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حساس علاقوں میں پرائیویٹ بسیں، کشتیاں، کرینیں کرائے پر لی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کو 3 وقت کا کھانا، راشن، خشک راشن اور خیمے دیے جا رہے ہیں۔ 3 ٹائم کا کھانا بھی لوگوں کو دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ریلیف کیمپس میں وہاں پہ موجود ہیں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں اپنا حصہ بٹا رہے ہیں۔ بلوچستان کے برساتی ندی نالوں نے بھی تونسا کا رخ کر لیا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کا موجود رہنا ضروری ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار، روہی، تونسا شریف۔ کوٹچھوٹا میں رود کوہی وڈور کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلے نے موسا معموری، اڈا سمندری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علاقے میں سیلاب کی تباہی کے باوجود انتظامیہ تاحال متاثرین کی داد رسی نہیں کر سکی ہے۔ کوٹچھوٹا میں رود کوہی وڈور کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی ریلے نے موزہ معموری، اڈا سمندری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ علاقے میں سیلاب کی تباہ کے باوجود بھی انتظامیہ تاحال متاثرین کی امداد رسی نہیں کر رہی۔ متاثرین بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھٹا میں وڈور رود کوہی کی تباہ کاریاں جاری۔ سیلابی ریلا چک نمبر 1 میں تباہی پھیلانے کے بعد موزہ معموری پہنچ گیا۔ بستی رمضان، خلیل والا اور جیاں والا مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ ادھر کپر ڈرین میں شگاف پڑنے سے سیلابی پانی اڈا سمندری میں بھی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے مکانات اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے پانی میں پھنسے سینکڑوں افراد کو تو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا، لیکن غریب لوگوں کی جمع پونجی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ علاقے میں سیلاب کی تباہی کے باوجود انتظامیہ نے تاحال متاثرین کی داد رسی نہیں کی۔ کوئی سر سائیں کہنی چاہیں جو لیتے ہیں، نہ فصل بچی نہ کچھ بچی نہ مکان، تھوڑے اکھی سامنے دیکھو ویڈیو چلتی پی تو پتہ لگ گئے سی 40 to 50 سی آبادی بستیاں یعنی یہ متاثر ہوئے ہیں۔ پانی بہو ہے تقریباً اتنا 4 ساڑھے 4 فٹ ہے۔ میں بچے کو کے آیا تقریباً میں کوئی تھی نہ پانی۔ بدترین سیلابی صورتحال کے باعث متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین بچوں سمیت فاقوں پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین شفقت مجید کے ساتھ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹچھوٹا۔ دریائے چناب میں سیلابی ریلا مظفر گڑھ سے گزر گیا۔ دوآبا کے مقام پر ایک بار پھر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ سیلابی پانی فصلوں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے چکا۔ موزہ، لال پور، رنگ پور، روہیلا والی، دوآبا سمیت دیگر علاقے زیراب آ چکے ہیں۔ دریائے چناب میں بھی اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے؟ دریائے چناب میں سیلابی ریلا مظفر گڑھ سے تو گزر گیا، مگر ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 90,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ موزہ، لال پور، رنگ پور، روہیلا والی میں کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں اب تک 1500 کے قریب افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ آم کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے ہماری مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ دریائے چناب میں رات کو جو 2 لاکھ کا ریلا گزرنا تھا وہ گزر رہا ہے، ابھی بھی گزر رہا ہے۔
यहाँ पे लोग जानवर लोगों के मर रहे हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की या गवर्नमेंट से या हमारे किसी अमले से या ज़िले से कोई इमदाद नहीं आ रही यहाँ पे। दूसरी तरफ ज़िले इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों के इक़दामात भी जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गैर सरकारी तंजीमों को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करने का कहा है। हुकाम का कहना है कि दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दरिया चनाब में पानी की सतह में फिर इजाफा। रंगपुर के नशेबी इलाके से रिया पानी के खतरात बढ़ गए। गुज़िश्ता सैलाब और बारिशों से सैकड़ों एकड़ अरासी पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। मुतासरा काश्तकारों को ताहाल माली इमदाद नहीं मिल सकी। इस हवाले से देखते हैं राना परवेज अख्तर की ये रिपोर्ट। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के खतरात मंडलाने लगे। दरमियाने दर्जे के सैलाब का अंदेशा जाहिर किया जाने लगा है। सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा इलाका मकीनों का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ कि फिर से सैलाब के खतरे ने दस्तक दे दी। काश्तकार सैकड़ों एकड़ तैयार फसलों और घरों के दरियाबुर्द होने पर सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सब कुछ सैलाब की नजर हो गया, मगर ज़िले इंतजामिया ने अभी तक नुकसानात का सर्वे तक नहीं किया। साथू हुकूमत असल तक नहीं पूछे भाई हाँ तुम मरदे हो या जींदे हो। साडा कोई तावन नहीं करंदा पिया, कोई है साडा इमदादी तो इमदाद न पहुंचे। ठेके नाल असां ज़मीन लईन, उस तो बाद मूंगी, तिल, कपाह, धान ये मतलब बर्बाद हो गए। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जानवर और घर का सामान बेचकर महंगी खादें और डीजल से फसलें काश्त की थीं, जो सैलाब और बारिशों की नजर हो गईं, मगर हुकूमत ने हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इतना जलील हो के हमने ये खर्चा वगैरह किया, लेकिन हमारी जो फसल है वो पहले पानी में डूब गई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमने अपने जानवर बेच के यानी कि अपनी दोबारा फसल काश्त की है। लेकिन दोबारा फसल यानी काश्त की है, फिर दोबारा यानी कि अब पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे बहुत ज़्यादा हमारा माली नुकसान हो रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएं और इन्हें माली इमदाद फराहम की जाए। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। डॉलर महंगा होने पर टोयोटा इंडस मोटर्स ने मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 9 से 31.5 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया था। अब इंडस मोटर ने मुख्तलिफ मॉडल की गाड़ियों की कीमतों में 2,60,000 रुपए से 11,40,000 रुपए तक कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 15 अगस्त से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉलर जैसे ही महंगा हुआ था, गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई थी। टोयोटा कंपनी ने डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। 2700 और 2800 सीसी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की कीमतों में 9,10,000 से 11,40,000 रुपए की कमी की गई है। टोयोटा ने अभी इनवॉइसों का थोड़ा बहुत अनाउंस किया है, वो भी उतना नहीं जितना डॉलर कम हुआ है। सब कंपनियों से गवर्नमेंट को चाहिए एक सख्ती से जो नया डॉलर का रेट आया उसके हिसाब से नई इनवॉइसें फौरी नाफज हों और फौरी लोगों को बुकिंग मिले, उसके बाद ही लोगों को रिलीफ मिलेगा। 1800 सीसी टोयोटा गाड़ियों की कीमतों में 4,40,000 और 2800 सीसी टोयोटा हाइलक्स रिवो की कीमतों में 6,50,000 से 8,20,000 रुपए तक की कमी की गई है। डीलर्स कहते हैं कंपनियों ने जितनी कीमतें बढ़ाई, अब उसी तनासब से कीमतें 80% तक कम होनी चाहिए। कंपनियों को एकदम ही रेट कम कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हर बंदा जिसने एक चीज़ भी लेनी है ना, एक गाड़ी लेनी, किसी ने सुजुकी भी लेनी, वो भी वेट कर रहा है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लिहाजा कंपनियां रेट कम करेंगी तो हम कम होगा तो फिर गाड़ी परचेज करेंगे। कार डीलर ने उम्मीद जाहिर की कि टोयोटा के बाद दीगर कंपनियां भी आइंदा 1 से 2 रोज में गाड़ियों की कीमतें कम करेंगी। गरीब आखिर करे तो क्या करे, हुकूमत ने महंगाई की मारी अवाम पर एक और बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल में 6 रुपये 72 पैसे इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। तफसीलात जानते हैं फराज रमजान की इस रिपोर्ट में। मंडी में पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां कीमतों में इजाफा हो रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत गरीब अवाम के मुतालिक नहीं सोच रही। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, अब घर का खर्चा पूरा करें या पेट्रोल डलवाएं। फ्यूल 70 का दबा रहे थे, अब 3 गुना ज्यादा हो गया फ्यूल। तो सिस्टम ये है कि अब खाना ही बंद कर सकते हैं। अब आखिरी हल वो है, पेट्रोल तो नहीं रुक सकता, काम करना है, नौकरी करनी है। इनका मजीद कहना था कि अखराजात पहले ही पूरे नहीं हो रहे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया सैलाब आएगा। गरीबों को ये उम्मीद थी भी कल पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये पेट्रोल महंगा करके गरीबों की कमर तोड़ दी है। इस मुल्क में गरीब आदमी तो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। हुकूमत से अपील है कि गरीब अवाम को रिलीफ दे, ना कि महंगाई का बम गिराए। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।
पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम नाराज, कहते हैं हुकूमत क्या कर रही है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आवाम की अक्सरियत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में पंप्स पर पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लाइनें लग गईं, क्योंकि बहुत सी जगहों पर पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। आवाम का पेट्रोल की कीमतों के इजाफे पर कहना था कि पेट्रोल महंगा भी हो गया है और मिल भी नहीं रहा। हुकूमत आवाम से मजाक कर रही है। कमर तोड़ दिए यार, पेट्रोल महंगाई इतनी कर दी है ना, क्या चाह रहे हैं यार ये हुकूमत वाले, समझ नहीं आ रहा। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में इजाफा पर अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि ये जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत परेशानी है, हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए हमें गरीब को। बहावलपुर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल न मिलने की शिकायत पर अवाम नाराज है। उन्होंने जिले इंतजामिया से अपील की है कि मामले का नोटिस लेकर मसला हल करवाया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। ओगरा ने गिराया गरीब आवाम पर एक और पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी इजाफा नाकाबिले कबूल है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद तेल महंगा कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, ओगरा ने गिराया गरीब आवाम पर एक और पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरी शदीद गमो गुस्से में मुब्तला हो गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। इसमें इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया भी महंगी हो जाती हैं। इनका मजीद कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। अब तो एक शहर से दूसरे शहर में सफर करना भी मुश्किल हो गया। मौजूदा हुकूमत भी गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और अपने फैसले पर नजरसानी करे। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। डेरा गाजी खान के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी तो ना दे। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए शहरियों का कहना था कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिसती जा रही है। शहरियों का कहना था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि हुकूमत कीमतें कम करने की बजाय बढ़ा रही है। कल पेट्रोल नहीं डलवाया कि सुबह रेट्स कम हो जाएंगे, उसके बाद नया रेट जो कम हो रहा है 18 रुपए फी लीटर पेट्रोल कम हो रहा था, भाई नए रेट पे डलवाएंगे। 11:44 पे खबर आ गई 6 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का इजाफा हो गया। परेशान हाल शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर खानेवाल के शहरी हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम को परेशान कर दिया है। इस हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस पर शहरियों का कहना था कि वो उम्मीद कर रहे थे पेट्रोल सस्ता होगा, मगर ये उल्ट हो गया। शहरियों का मजीद कहना था कि डॉलर की कीमत कम हुई और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, मगर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम को परेशान कर दिया है। आलमी तौर पर डॉलर की कीमत नीचे आई तो इसका रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए था, लेकिन गुज़श्ता रात को जो है ये पेट्रोल बम अवाम पर गिराया गया। शहरियों का मानना है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी और लोग दो वक्त की रोटी को भी तरस जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत तेल की कीमत फौरी कम करे। कैमरामैन मिर्जा अफजाल के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। पेट्रोल में महंगाई की वजह से अवाम परेशान है। मौजूदा हुकूमत के दौर में भी महंगाई का न रुकने वाला सिलसिला जारी और सारी है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से महंगाई की नई लहर सामने आएगी और अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होगा। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। महंगाई से सताई आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होने से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा और आवाम को महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। बहुत परेशानी है, हर चीज का बजट जो है वो आउट हो गया है।
हालांकि ये इतलात आ रही थी कि कोई 5-10 रुपए पेट्रोल सस्ता हो, हालांकि उल्टा ये इनको महंगा कर दिया गया पेट्रोल को। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत तो अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़्तिदार में आई थी, लेकिन महंगाई में इसने साबिक हुकूमत के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में अवाम की मुश्किलात मुसलसल बढ़ रही हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, आगे परेशान मजीद परेशान करता, हर शय महंगी करती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा से गरीब मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में सबसे ज्यादा इजाफा होगा। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से शहरी सरापा एहतजाज हैं या महंगा पेट्रोल डलवाएं, महंगाई का मजीद तूफान आने का खदशा है। जानते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। रुल्लावाले की शहरी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। बढ़ती महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है। आलमी मार्केट से तेल की कीमतों में कमी हुई है। डॉलर की कदर गिरने से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। पहले जो है ना डॉलर चढ़ता था, उसकी कीमत बढ़ाते थे तो पेट्रोल भी बढ़ जाता था। इस मरतबा तो डॉलर भी नीचे आ गया है, काफी हद तक नीचे आ गया है, लेकिन पेट्रोल की कीमत उन्होंने फिर 6 रुपये दोबारा चढ़ा दी है, ऊपर चढ़ा दिया है। इस वजह से शहरी है ना वो बहुत परेशान है, खाने पीने की अशिया में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। डॉलर का रेट बढ़ते ही पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब डॉलर का रेट कम हुआ तो कीमतें बढ़ाना समझ से बालातर है। हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि इसमें थोड़ी महंगाई को कम कर दिया जाए। डॉलर जैसे जैसे नीचे आ रहा है, महंगाई भी नीचे की जाए। हुकूमत को चाहिए था पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, अब रही सही कसर पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने पूरी कर दी है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, रुल्लावाली। मुल्तान में निसाबी कुतुब की किल्लत का मसला ताहाल हल न हो सका। 1 माह गुजर जाने के बाद भी मिडल, मैट्रिक और इंटर की किताबें तलबा की पहुंच से कोसों दूर हैं। तलबा की तालीम मुतासिर होने लगी है। रिपोर्ट कर रही हैं सुखीरा तारिक। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की निसाबी कुतब ताहाल तलबा की पहुंच से दूर हैं। 1 माह गुजर जाने के बाद भी मिडल, मैट्रिक और इंटर की किताबें तलबा को दस्तयाब नहीं हो सकी। दुकानों पर कोर्स की किताबें ना मिलने के बायस तलबा और वालिदैन परेशान हैं। 6, 7, 8 को जो नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने उसमें सेंस लिया कि हम इसको पुरानी बुक्स को ही इशू करेंगे, तो पूरी तैयारी चेंज की हो चुकी थी, वो उसको रोक दिया गया। एक तो उसकी वजह से डिले है। दूसरा, जिस वक्त कोटेशंस हुई थी बुक्स छापने के लिए, जो पब्लिशर्स होते हैं उनकी, उस वक्त कागज़ का रेट और था, और जब उनको एलोकेशन हुआ, उनको कहा गया कि आप प्रिंट करें पेपर, तो उस वक्त प्राइसेस इतनी हाई हो चुकी थी कि उन्होंने कहा जी हम इस पेपर के साथ, इस प्राइसेस के साथ नहीं कर सकते। तलबा और तालिबात का कहना है कि नई क्लासों का आगाज हो चुका है, मगर किताबें नहीं मिल रही। दुकानों पर किताबें मुयस्सर ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करें। सेकेंड ईयर के मुताला पाकिस्तान और 9th क्लास की इस्लामियात के दोनों बुक्स जो चेंज हुई हैं अभी, वो बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी पेपर होने वाले हैं बच्चों के, और फिर वो 2 साल तक बच्चों ने पुरानी पढ़ी हैं और अब उन्होंने नहीं लगा दी इस्लामियात की। मुकम्मल विजिट किया है मार्केट का। इस वक्त ना मार्केट में अवेलेबल नहीं है बुक्स। 1 से 2 बुक्स मिलती हैं, किसी से उसके अलावा है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल परेशानी का सामना पड़ा है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि कागज की कीमतों में इजाफे और हुकूमत की तब्दीली के बायस किताबें वक्त पर पब्लिश नहीं हो रही। किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह से तलबा अपनी तालीम का हर्ज होने पर परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर पर नाकिस इंतजामात। रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली खवातीन गर्मी में कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के नारफा रवैये और माली इमदाद न मिलने पर खवातीन में गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्तान में एहसास कफालत सेंटर में आने वाली खवातीन दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो गईं। गुलगश में कायम एहसास कफालत सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली मुस्तहिक खवातीन को परेशानी का सामना है। सेंटर के अंदर जाने के लिए खवातीन गर्मी और धूप में कई घंटे इंतजार करने पर मजबूर हैं। बहुत परेशान, धूप से खड़े बेइज्जतियां कर देन, धक्के दे देन। बार बार क्यों आई हो? असि बार बार नहीं आए, 1.5 साल हो गए बेनजीर बेचन बंद हुए। मैं बेवा औरत हूँ, बच्चे मेरे नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, बेसहारा हूँ, लोगों को पैसे मिल रहे मुझे नहीं। खवातीन का कहना था कि गर्मी और हबस में खड़े रहना मुहाल है। बीमार और बुजुर्ग खवातीन के लिए बैठने की कोई जगह नहीं। अपनी बारी के इंतजार के लिए खुले आसमान तले खड़े रहना पड़ता है।
जो गरीब हैं वो ऐसे मर रहे हैं। जाके हमारा घर देख लें, हमें देख लें, दर पदर कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जहाँ पे भी कहते हैं ना कि वहाँ से ही मतलब वो देते हैं मजदूरी, हम वहीं 2.5 घंटे 10 घंटे तक खड़ी रहे, वाल गेट खोलने अंदर बड़ा गए, काटा ला के दे दी। खवातीन का कहना था कि यहाँ पर कई घंटे इंतजार करने के बाद भी इमदाद नहीं मिलती। गुज़िश्ता 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं मगर इंतजामिया को हमारा कोई ख्याल नहीं है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहरी बेचारे मैप्को की वजह से परेशान हैं। मैप्को हुकाम शहरियों की जान से खेलने लगे हैं। एहलकारों की नाअहली किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। गलियों में झूलती बिजली की नंगी तारें और खंभों पर लटकते मीटर शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुकाम की नाअहली की वजह से चौक सरवर शहीद के मोहल्ला इस्लामपुरा, मदीना चौक, लाहौरी मार्केट में बिजली की नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। बिजली पोल्स पर लटकते मीटरों के बाइस भी शहरियों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। बिजली की नंगी तारें और लटकते हुए मीटर किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। इंतजामिया से यही मुतालबा भी ये जो खंबे पे, पोल पे जो मीटर लगे हुए हैं, या इनको ऊपर ऊंचा करके लगा दिया जाए, या अवाम की जो दीवारें हैं उनके साथ जिन का मीटर उनको लगा दें, क्योंकि ये सारी नंगी तारें हैं। बच्चे इधर से जाते आते हैं, खेलते हैं, क्योंकि बच्चे तो हैं, उन्होंने तो मोहल्ले गली में खेलना है। जब वो खेलते हैं तो कोई ना कोई बच्चा ऐसे इसके साथ लग जाएगा। अहले इलाका का कहना है कि गलियों में बिजली की लटकी हुई नंगी तारें और लटकते मीटर बच्चों के और बड़ों के लिए खतरा हैं। मुतादिद बार मैप्को हुकाम को आगाह किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। शहरियों और दुकानदारों ने मैप्को चीफ मुल्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा उमर चौधरी, चौक सरवर शहीद।